Hello friends, welcome to EduSign Law, the best platform for studies of law. If you want to attend our live session, then you can contact in the number given in the description. Now this is the second lecture of a series of lectures where we are discussing the entire criminal procedure code. And in this class, we are going to discuss about criminal courts, different types of criminal courts and its power, that is their jurisdiction. Now, the criminal courts, different types of criminal courts has been discussed under chapter 2 of CRPC, which extends from section 6 to 25A. 6 to 25A. Whereas the power of these courts has been mainly dealt under chapter 3 and which extends from section 26 to 35. Right. Now, in this power, even other than chapter 3, we have to relate various other sections like section 209, section 322 to 325, section 407, 408. So we are going to discuss these chapters holistically, and we have to take into account, to study CRPC we have to take into account the entire CRPC. हम सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं पढ़ सकते, सब बहुत सारे चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एंड टू द बेस्ट वे टू स्टडी लॉ इज टू स्टडी इट इंटर रिलेटेड विद एन इंटर रिलेशन होलिस्टिकली. ठीक है ना? सो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड. Right. Look, there are mainly 5 types of criminal codes. There are mainly 5 types of criminal code. 5 types of criminal code. Right. The number 1, first, is the High Court, which is at the top in any state. The High Court. Right. Now, हमें पता है कि ये जो कोर्ट है ये डिस्ट्रिक्ट में उनका एक क्लासिफिकेशन है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में इनका एक क्लासिफिकेशन है. डिस्ट्रिक्ट में क्लासिफिकेशन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक क्लासिफिकेशन है. तो जितने भी कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स जितने भी है, वो सारे हाई कोर्ट के नीचे है. तो हाई कोर्ट के नीचे जो नंबर 2 है कोर्ट टाइप, दैट इज सेशन कोर्ट. राइट. ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया में सिटी सेशन कोर्ट होता है. सिटी सेशन कोर्ट होता है. तो अंडर सेशन कोर्ट सबसे पहले कौन होता है? सेशन जज. जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होता है, एंड एडिशनल सेशन जज. और जो दूसरे टाइप होता है दैट इज असिस्टेंट सेशन जज. असिस्टेंट सेशन जज इज सबऑर्डिनेट टू सेशन जज. सिमिलरली मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी इसी तरीके से है. सिटी सेशन कोर्ट में यही डिवीजन है.
तो जो पावर होता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज का सेम होता है, असिस्टेंट जज का थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, जो हमारे पास तीसरी नंबर कोर्ट है, जो थर्ड नंबर कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट विच इज सबऑर्डिनेट टू सेशन कोर्ट। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो इसमें कौन कौन होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में? टॉप में होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सिमिलरली मेट्रोपॉलिटन एरिया में सबसे टॉप में होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, राइट। दूसरे नंबर पे आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। और फिर यहाँ पे आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, राइट। और चौथे नंबर पे आता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। Some judicial functions has been provided to the executive magistrate. There is a fifth number, but we are coming to the fifth number after some time. Now look at the power of these courts. Look at the power of these courts. The power of High Court is that High Court can pass any judgment. High Court can pass any judgment. Right. The session judge and additional session judge, they also can pass any judgment. They also can pass any judgment but the death sentence is subject to the confirmation by High Court. Death sentence is subject to the confirmation by High Court. Right. And the power of assistant session judges, it can pass any judgment, up to 10 years of imprisonment. Up to 10 years of imprisonment. Right. Similarly, the power of CJM, Chief Judicial Magistrate and Chief Metropolitan Magistrate, इनका जो पावर होता है वो होता है up to 7 years of imprisonment. 7 years of imprisonment.
सिमिलरली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनका पावर होता है अप टू 3 years, up to 3 years, or up to 10,000 rupees fine, or both, or both. एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास होते हैं, उनका पावर होता है अप टू 1 year of imprisonment or up to 5,000 rupees of fine, or both. ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, इनके पास वही मैटर्स सारे जाते हैं जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स में है। नाउ इन द प्रीवियस क्लास we have seen the classification, the basic structure of entire CRPC, and we had seen several chapters there, from chapter 8 to 11. From chapter 8 to 11 is for preventive measures, right? Now out of these four chapters, except for the chapter 9, except for chapter 9, which talks about maintenance, that goes to judicial magistrate. Rest all other chapters, that is 8, 10 and 11, these all chapters, the matter goes to the executive magistrate, right? So this is the main classification of the criminal courts in India. There is another fifth type of criminal court, that is special court. टाइम टू टाइम स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है डिफरेंट क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए। तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। नाउ द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज कि सरकार एक पॉलिटिशियंस के क्राइम के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाना चाहता था, ताकि पॉलिटिशियंस की जो क्रिमिनल मैटर्स है, क्रिमिनल जो केसेस है, उसके जल्दी से एक जजमेंट आ सके। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्पेशल कोर्ट कभी बनाया जाए, सो द स्पेशल कोर्ट शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑफेंस, not offender. क्योंकि पॉलिटिशियंस ऑफेंडर है, ठीक है, और वो कोड बनाना चाहता था पॉलिटिशियंस के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऑफेंस स्पेसिफिक स्पेशल कोड बनना चाहिए, ना कि ऑफेंडर स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, यू कैन मेक अ स्पेशल कोड वेयर ऑल द मैटर रिलेटेड टू पॉक्सो विल बी ट्राइड। You can make a special court where all the matters related to NDPS Act, जो ड्रग्स रिलेटेड केस है, that will be tried, ठीक है। लेकिन आप ये ऐसे कोर्ट नहीं बना सकते जो कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को ट्राई करे, जैसे पॉलिटिशियंस, या फिर हो गया कि किसी कोई बिजनेसमैन स्पेसिफिक स्पेशल कोर्ट, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऑफेंस स्पेसिफिक स्पेशल कोर्ट हो सकता है, ऑफेंडर स्पेसिफिक नहीं, ठीक है। सो दिस वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। नाउ इफ यू गो towards section 626 to 35, you will find several other issues, like जैसे कोर्ट के पास फाइन इंपोज करने की पावर रहता है, ठीक है, लेकिन अगर फाइन देने से भी इनकार कर दिया जो कन्विक्टेड है, या फिर फाइन नहीं दे पाया, फाइन नहीं दिया, तो क्या किया जा सकता है? तो उनके इम्प्रिजनमेंट को बढ़ा दिया जा सकता है। लेकिन किस लेवल तक, कितने, अप टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी इंक्रीज? इन दिस मैटर इट हैज बीन सेड कि इट कैन बी इंक्रीज्ड मैक्सिमम अप टू 1/4 times of the maximum limit, 1/4 times of the maximum limit
of that court where it has been the court which is trying this case. ठीक है ना? अब एक और मैटर है, जैसे कि कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि accused is being tried for more than one offense, right? So अगर more than one offense है तो जो उसके जो conviction के बाद जो sentence होता है वो generally अगर कुछ mention नहीं किया जाता है तो that is consecutively, वो मान लिया जाता है consecutively, that will run consecutively. But if the in the judgment it is mentioned, then it can be converted into concurrently, तो एक साथ रन होगा. ठीक है? तो अगर consecutively रन होता है, suppose X is a person who has been tried for two offense A and B. A के लिए उसको 5 साल का सजा मिला, B offense के लिए 3 साल का सजा मिला. A and B is two offenses, right? तो A offense के लिए 5 साल का और B offense के लिए 3 साल का. तो ये अगर जजमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी कंसीडर्ड दैट द सेंटेंस विल बी रनिंग कॉन्जिक्यूटिवली, दैट इज 8 years, दैट विल बी 8 years. बट अगर मेंशन रहे तो दैट विल रन कॉन्करेंटली, तो 5 साल के जो जेल टर्म हो रहा है उसी के साथ साथ ये 3 टर्म भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इन टोटल उनका जेल टर्म होगा 5 साल. ठीक है? लेकिन अगर कॉन्सिक्यूटिवली रन हो रहा है, तो क्या कितने कितने अमाउंट तक, कितने साल तक की इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम एक कोर्ट दे सकता है? तो इसके बारे में कहा गया है कि मैक्सिमम अप टू 14 years, मैक्सिमम अप टू 14 years और 2 times of the maximum sentencing power of that court. Two times of the sentencing power of that court, right? Now, जब कोई ऑफेंस होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आता है उसके कॉग्निजेंस के लिए. तो सबसे पहले उनके कॉग्निजेंस लिया जाता है. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास तब भी आ सकता है कॉग्निजेंस के लिए व्हेन 2 conditions satisfied. The first condition is he is empowered to take cognizance by the CJM, that is Chief Judicial Magistrate, and he is competent to try that case. तब भी जाकर के वो कॉग्निजेंस ले सकता है, वरना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही कॉग्निजेंस लेते हैं. ठीक है ना? तो कॉग्निजेंस लेने के बाद इशू ऑफ प्रोसेस किया जाता है. इशू ऑफ प्रोसेस में एक्यूज्ड को प्रोड्यूस किया जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने और उसको सारे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं. ठीक है? इशू ऑफ प्रोसेस, राइट? अब इशू ऑफ प्रोसेस के बाद जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, इशू ऑफ प्रोसेस के बाद जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है उनके पास ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं. पहला ऑप्शन ये है कि इट इज अंडर द ऑफेंस इज अंडर हिज जुरिस्डिक्शन. तो अगर उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर हुआ तो ही विल ट्राई दैट केस. अगर उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं हुआ तब ये हो सकता है कि उनको ये लगा कि द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट, राइट? एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट. इन दैट केस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? ही विल कमिट द मैटर टू सेशन कोर्ट. और ये किस सेक्शन में मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है सेक्शन 209 में. Under section 209 it has been mentioned कि if it is exclusively travel by session court then it will be committed to the session court. और ये कहाँ से पता चलेगा कि कौन से offense किस कोर्ट में ट्रैवल है? This has been mentioned in the schedule 1 of CRPC.
तो उसके हिसाब से अगर सेशन एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय सेशन कोड, देन इट विल कम अंडर सेक्शन 209. नाउ इट इज वेरी नेसेसरी टू नो थ्री टर्म्स हियर. द फर्स्ट टर्म इज, one term is committal. कमिटल का मतलब हुआ सबमिशन टू ओनली एंड ओनली टू सेशन कोर्ट. जब कोर्ट ऑफ सेशन में सबमिट किया जाता है तो ही उसको कमिटल कहा जाता है. नंबर 2, सबमिशन. सबमिशन वो होता है जहां पे लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट ट्रांसफर किया जाता है. जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से सीजीएम को ट्रांसफर किया गया तो उसको बोला जाता है सबमिशन. और तीसरा टर्म है मेकिंग ओवर. मेकिंग ओवर वो होता है जिसमें हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है. जैसे सीजीएम मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में ट्रांसफर किया गया तो उसको बोला जाता है मेकिंग ओवर. ठीक है. नाउ नाउ इसके बाद ये हो गया दूसरा ऑप्शन. तीसरा ऑप्शन ये हुआ कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा था. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाज ट्राइंग दैट केस, लेकिन जजमेंट आने से पहले ही प्रोसीडिंग के चलते दौरान किसी भी स्टेज पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लग सकता है कि दिस डज नॉट कम अंडर हिज जुरिस्डिक्शन. ठीक है. ये बहुत सारे रीजन के वजह से लग सकता है. पहला एक रीजन ये है कि सेंटेंस को एनहेंस करना पड़ेगा. पहला रीजन ये है कि सेंटेंस को एनहेंस करना पड़ेगा. तो सेंटेंस को कितना एनहेंस करना पड़ेगा? अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगा कि द सेंटेंस शुड बी, द एनहेंसमेंट ऑफ द सेंटेंस शुड बी मोर देन 7 years, मोर देन 7 years, तो वो क्या करेगा? वो सेशन कोर्ट में कमिट करेगा, क्योंकि 7 years तक ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है, उसके ऊपर असिस्टेंट सेशन कोर्ट, तो सेशन कोर्ट में वो ट्रांसफर करेगा, तो वो कमिट करेगा. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 323. So these two section, section 209 and section 323. These two section 209 and section 323 has to be studied together. Study section 209, read with section 323. Both this is for committal of the matter to the session court. अब सेशन, ये जो सेंटेंस ऑफ एनहेंसमेंट है, इफ इट इज अप टू 7 years, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगा कि द मैटर इज हाईली कॉम्प्लेक्स, और उसको ये लगा कि दिस मैटर शुड बी ट्राइड बाय अनदर कोर्ट इन अनदर डिस्ट्रिक्ट व्हिच ही इज नॉट एबल टू ट्रांसफर, तो वो क्या करता है? ही ट्रांसफर द मैटर और ही सबमिट द मैटर टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. Right. So to study these provisions has been mentioned section 322. Read with section 325. सेक्शन 322 एंड सेक्शन 325 को एक साथ रीड करना पड़ेगा. तो ये सारे मैटर्स, जब उनके पास ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं तो वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को वो मैटर ट्रांसफर कर देता है. ठीक है. अब जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास चला गया, जब आप चला गया तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं. ठीक है. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई द केस हिमसेल्फ, अगर उनको लगा कि द मैटर इज विद इन हिज जुरिस्डिक्शन. राइट. अगर उनको लगा कि नो, द
matter is not within his jurisdiction and it has to be sent to court of session, then he can also commit the matter to court of session because he is also a judicial magistrate first class. ठीक है, आउट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि ही कैन डायरेक्टली ट्रांसफर to a subordinate court competent to try the matter, which is called making over. So he can make over, or he can transfer to another district. He can transfer to another district where it may be committed or it may be transferred to subordinate court. Right. So these are the options that is open to the CJM. Right. So this is all about the powers of the court. तो किस कोर्ट में केस जाएगा उसका पहला सोर्स है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में देखना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद जैसे जैसे मैटर का सर्कमस्टेंस होगा, जैसे जैसे केस का सिचुएशन होगा, उसके हिसाब से कोर्ट में उस केस को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।